Hello, my dear friends. Let us discuss today the remaining theories of chapter number 2 solution. In last lecture, we discussed regarding colligative properties, and at last we derived Raoult's law and we solved two problems regarding Raoult's law. So let us start from next colligative property, and the next colligative property is elevation in boiling point. So make a heading in your book, elevation in boiling point. So generally the question asked in elevation in boiling point is, write down question, what is molar elevation constant? What is molar elevation? Here elevation means increase, not that elevation in construction. What is molar elevation constant question mark? Derive formula for it. Derive formula for it. And this question is very most important so far as exam is concerned. So pay your attention clearly. So before starting elevation in boiling point, let us discuss first what is boiling point. Write down definition of boiling point: the temperature at which the vapor pressure of liquid becomes 1 atmospheric pressure और 1 बार, क्योंकि हमारे ऊपर जो प्रेशर है वो 1 बार, अगर लिक्विड को बाहर निकलना है तो वो 1 बार प्रेशर के अगेंस्ट जाना होगा। तो उसका जब प्रेशर 1 बार इक्वल हो जाता है तब लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स 1 बार। तो कहीं पे 1 बार 1 एटमोस्फियर नहीं होता, आप हाई अल्टीट्यूड पे जाते हो तो प्रेशर कम हो जाता है। तो डेफिनेशन में ऐसा भी लिख सकते हैं कि और becomes equal to एक्सटर्नल प्रेशर। बाहर जो प्रेशर होता है उतना प्रेशर अंदर हो जाए तब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होकर बाहर निकलना चालू करता है। इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर is called its boiling point. Is called its boiling point, और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं BP. X फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेशन के बाद लिखेंगे, हम एक एग्जाम्पल देंगे। X फॉर एग्जाम्पल,
the boiling point of water is 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ कि at 100 डिग्री सेल्सियस or you can say 373 Kelvin temperature, the vapor pressure of water and becomes equal to the atmospheric pressure. Then vapor start to convert into water start to convert into vapor. अब एक बात कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने ये भी कही है आगे, तो यहाँ जरा मैं इसको नोट कर रहा हूँ कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, the boiling point of pure solvent is less than the boiling point of solution prepared from that solvent. ऑलवेज रिमेंबर, जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, तो अगर आप एक चम्मच उसमें सोल्ट डालेंगे तो वो 100 डिग्री पे बॉइल नहीं होगा। ऑलवेज द बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको वो पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, सॉल्वेंट वोलेटाइल। यहां पे भी मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपको, वो जरा कंपेयर करना। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम दैट सॉल्वेंट। थोड़े पन्ने आप आगे जाएंगे तो आपको ये रिलेशन मिलेगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में मैंने आपको बताया है। सॉल्यूशन का टाइप है सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल, सॉल्वेंट वोलेटाइल, उसमें ही हमने राउल्ट लॉ डिराइव किया। तो जैसे वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम ही आएगा। लॉजिकली आप सोचना, यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर is 373 Kelvin, and that one is less than the boiling point of the solution prepared from water, and suppose that is solution of sugar. Here sugar is non-volatile, sugar aqueous solution, boiling point of aqueous solution of sugar is 373.54 Kelvin, and that is depend upon how much sugar is added. More concentration, as much sugar is added, that much boiling point is increases. This is the data of one experiment. How much added, that is not written here. But remember, the boiling point of pure solvent is always less than the boiling point of solution prepared from that solvent. कोई भी solvent हो, यहाँ पे हम बार बार water ले रहे हैं। तो ये statement, my dear student, ये वाला statement जो है ये बहुत ही important। ये इसी बात पे elevation in boiling point, मतलब कि ये जो क्वेश्चन हमने लिखा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, वो थियरी जाएगी। ठीक है, अब वो थियरी हम डिराइव करने जा रहे हैं, तो एक सॉल्यूशन ले लो। सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सोल्यूट जो है वो हमारा नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल, सोल्यूट के नीचे लिख लेना नॉन वोलेटाइल। अब सोलवेंट जो है हमारा वो है वोलेटाइल। सो द वेपर प्रेशर is not due to solute, vapor pressure is due to solvent, and as much solute is added vapor pressure decreases, as vapor pressure decreases boiling point increases, सीधा है। So
write down downside, next point, and that is write down vapor pressure is only due to solvent. ठीक है, write down therefore in this case vapor pressure is only due to solvent, not due to solute, because solute is non-volatile. This type of increase in boiling point, जैसे हम सॉल्वेंट लेते हैं बाद में सॉल्यूशन बनाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100. जब उसमें 1 या 2 स्पून टेबल स्पून हम सोल्ट डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होकर 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. तो ये जो इंक्रीज होता है उसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो अब पॉइंट लिखेंगे दिस इंक्रीज चाहे 0.5 0.05 बढ़ता है उसको बोलेंगे एलिवेशन. दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. क्या बोलते हैं उसको? elevation in boiling point, and it is denoted by delta TB. And see, delta TB is colligative property. Remember, delta TB is it depend upon how much solute is added. आप अगर एक ग्लास में पानी लेते हो, दूसरे ग्लास में जो है वो उतना ही पानी रख के 1 स्पून सोल्ट डालते हो, तीसरे में 2 स्पून डालते हो, तीसरा ग्लास है तो 3 स्पून डालते हो. जैसे जैसे सोल्यूट नॉन वोलेटाइल आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे डेल्टा टीबी मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता ही जाएगा. तो दैट इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. ओके, तो डेल्टा टीबी इज colligative property, means elevation in boiling point is colligative property. ठीक है, ये एक colligative property. अब मुझे आपको समझाना है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट. तो इसके लिए आपको बनाना है प्रिपेयर 1 मोलल, इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ शुगर. दूसरा लेना है आपको ग्लूकोज एंड यूरिया. 1 मोलल सॉल्यूशन. और आपको ये ध्यान में रखना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर आप NaCl लेंगे तो एक NaCl 2 आयन देता है, Na+Cl-, तो जो प्रॉपर्टी है वो डबल हो जाएगी. इसमें मैंने तीनों सॉल्यूट ऐसे लिए जो आयोनाइज नहीं होते हैं, तभी ये थियरी हम समझा पाएंगे. ठीक है, आप ऐसा नहीं ले सकते एक शुगर लो, एक NaCl लो और दूसरा आप लो H2SO4 या तो FeCl3. FeCl3 में 4 आयन होते हैं, 3 क्लोरीन और 1 Fe. तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. ठीक है, इट इंक्रीजेस एज आयंस इंक्रीजेस. तो इसमें सब आयोनिक सोल्ट नहीं है, शुगर ग्लूकोज और यूरिया लिया है वो आयोनाइज नहीं होते. तो अब आपको बनाना है 1 मोलल सॉल्यूशन. चलिए अब देखते हैं कि 1 मोलल सॉल्यूशन कैसे बनता है. तो आपको 1 मोलल शुगर का एक्वेस सॉल्यूशन बनाना है. ध्यान देना, धीरे धीरे थियरी आगे बढ़ रही है, बहुत ही बढ़िया थियरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 1 मोलल ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाना है. ये इक्वल टू निकाल देना. ठीक है, इक्वल टू की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्पेस रखना. 1 मोलल ग्लूकोज एक्वियस सॉल्यूशन. और बनाओ 1 मोलल
यूरिया, उसका एक्वियस सॉल्यूशन। अब 1 मोल कैसे बनता है? तो शुगर का मोलर मास जो है ना, वो है 342 ग्राम। 342 ग्राम शुगर, 342 ग्राम शुगर इन 1 किलोग्राम वाटर, इन 1 किलोग्राम वाटर। 342 ग्राम शुगर जो है वो 1 किलोग्राम वाटर में डालना है। इसी तरह ग्लूकोज का जो मास है वो है 180 ग्राम। तो 1 मोलल सॉल्यूशन बनता है 180 ग्राम ग्लूकोज इन 1 किलोग्राम वाटर। मोलल की डेफिनेशन पढ़ लेना, 1 किलोग्राम वाटर, ये हो गया 1 मोलल। अब यूरिया समझाने की जरूरत नहीं है। 60 ग्राम यूरिया इन 1 किलोग्राम वाटर। ठीक है, 60 ग्राम यूरिया इन 1 किलोग्राम वाटर। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB1 है और इसका बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB2 है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं सॉरी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसका बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB3 है, तो ये तीनों वैल्यू सेम रहेगी और इसको हम बोलेंगे KB, एंड दिस KB इज नथिंग बट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। शुगर ले लो, ग्लूकोज ले लो, यूरिया ले लो, सुक्रोज, सुक्रोज तो है शुगर, मतलब फ्रुक्टोज ले लो, कोई भी नॉन आयोनिक सोल्ट ले लो। अगर आप NaCl लेते हो तो 1 मोलल NaCl बनाओगे तो आयन 2 मोलल हो जाएंगे, क्योंकि एक NaCl 2 आयन, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिपेंड ऑन आयंस। यहाँ आयन नहीं बनते, इसीलिए समझाने में अच्छा रहता है। तो 1 मोलल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, मास नहीं देखना है, 342 ग्राम है, 180 है, 60, लेकिन 1 मोलल उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेम ही रहेगा। और जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट that one is same, then that is called मोलल एलिवेशन। मोलल हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि सॉल्यूशन हमारा 1 मोल है। ये लिख लीजिए, ये एग्जांपल है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का। एक बार ठीक से देख लीजिए, ठीक है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो यहां नीचे लिख लीजिए KB इज इक्वल टू मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, KB का मतलब ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। KB is also called, KB is also called ebullioscopic constant. Ebullioscopic, ebullo is a Latin word. Ebullo means to boil. Ebullioscopic constant, KB को ऐसे भी बोला जाता है, ebullioscopic constant। दूसरा नाम है उसका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसको मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, measured by instrument called ebullioscope। जैसे माइक्रोस्कोप बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इसी तरह इसका नाम है ebullioscope। अब इसको समझने के लिए
we have to draw one graph. तो इससे पहले हम डेफिनेशन दे देते हैं, ठीक है पहले। तो अब हम डेफिनेशन लिखेंगे केबी का। केबी मतलब क्या? डेल्टा टीबी तो आपको समझ में आ गया। डेल्टा टीबी मीन्स द डिफरेंस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट। तो केबी क्या है? केबी इज नथिंग बट द बॉइलिंग पॉइंट elevation or elevation in boiling point. Elevation in boiling point of 1 molar solution. Elevation in boiling point of 1 molar solution is called Kb. हमने 3 सॉल्यूशन बनाए 1 मोलर, एक सुक्रोज का मतलब शुगर का, एक ग्लूकोज का, एक यूरिया का। तीनों का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेम है क्योंकि पानी में बनाया है। तो अगर तीनों में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर का 100 है, अगर शुगर मिला के हम 1 मोल बनाते हैं तो उसका मानो कि आता है 105। तो यूरिया का भी आएगा 105 एंड ग्लूकोज का भी आएगा 105। तो डिफरेंस हुआ 5 डिग्री, ठीक है। तो केबी का मतलब है कि अगर एक मोलल सॉल्यूशन है आपका, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन आता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम बोलेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऐसे लिखना, यहाँ पे जो मैंने बॉइलिंग एलिवेशन लिखा ना, वो ऐसे लिख लेना कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए कि लेट्स ड्रॉ ग्राफ, लेट्स ड्रॉ graph of vapor pressure versus temperature in Kelvin। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में जरा ध्यान दीजिएगा, 2 ग्राफ में ड्रॉ करने। कौन कौन से? एक तो प्योर सॉल्वेंट का और दूसरा सॉल्यूशन का। तो पूरे पेज में हम सिर्फ ग्राफ ही ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे मैं रख देता हूँ ये 1 बार, मानो कि ये 1 बार है, और यू कैन से 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। ऑन एक्स एक्सिस राइट डाउन वेपर प्रेशर, ऑन वाई एक्सिस राइट डाउन टेम्परेचर इन केल्विन। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 1 बार, ठीक है। थोड़ा कर्व देने की कोशिश करना, ऐसे वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 1 बार। अब चलिए सॉल्यूशन लेते हैं। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एंड वन टाइम अराइजेस द वेपर प्रेशर बिकम्स 1 बार। तो ये जो है, दिस वन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये कर्व मैंने जो ड्रॉ किया है वो है प्योर सॉल्वेंट। ये जो कर्व है वो आपका है प्योर सॉल्वेंट, और दिस कर्व इज फॉर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम दैट। अब जैसे टेम्परेचर 1 बार हुआ तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दैट इट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो हम मेजर करते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये, उसको हम लिखेंगे T0B, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है इसको हम लिखेंगे TB। क्या लिखेंगे? ये वाला TB। अब यहां पे आपको पूरा पता है TB इज ग्रेटर देन T0B। तो इसका डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस आएगा, उसको बोलेंगे हम डेल्टा TB। तो आपके पास पहला इक्वेशन आ जाता है, देयरफॉर
The first equation is delta TB is equal to TB minus T0B. Give this equation number 1. ये एक ही ग्राफ है, बाद में तो हमें इक्वेशन ही डिराइव करना है। ध्यान में रखना, ये पहला कर्व जो है वो मैंने प्योर सॉल्वेंट के लिए लिया है, दूसरा कर्व जो है वो मैंने सॉल्यूशन के लिए लिया है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस the vapor pressure increases and one time arises, see here, one time arises where the vapor pressure becomes 1 bar, and this vapor pressure, this red color dot is nothing but the boiling point of solution, and this one is the boiling point of solvent. यहाँ पे अब जरा लिख लेना, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ जगह है तो लिख लेना, दिस वन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट प्योर होना चाहिए। देखिए ये जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। ग्राफ समझ में आ गया पूरा। और अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी TB इज ऑलवेज ग्रेटर देन T0B, TB इज ऑलवेज ग्रेटर देन T0B, ये आपको ये है ही। देखिए वो ऑन एक्स एक्सिस, on y axis I have taken vapor pressure, on x axis I have taken temperature. तो आपको डेल्टा TB मिलेगा TB माइनस T0B। अब आपको ऑल टर्म लिखनी है आपके बुक में, मैं लिखूंगा जहां जगह है वहां पे। TB is equal to write down elevation in boiling point, T0B लिखिए boiling point of pure solvent, प्योर सॉल्वेंट। अब TB क्या है? TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम दैट प्योर सॉल्वेंट। आप लिख लेना, ठीक है। मैंने 2 टर्म की जगह थी तो 2 टर्म लिख लिए। चलिए हम डेरिवेशन की तरफ चलते। तीनों टर्म आपको लिखनी है ये ग्राफ के नीचे। व्हाट इज डेल्टा TB, व्हाट इज T0B, व्हाट इज TB। TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, T0B इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड डेल्टा TB इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम दैट प्योर सॉल्वेंट। और सीधा सॉल्यूशन लिखेंगे तो भी चलेगा। डेल्टा TB इज नथिंग बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा। आपको समझ में आना चाहिए बस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अब मैं थियरी को डिराइव करने जा रहा हूं, जरा आप ध्यान दीजिएगा। बहुत हम अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू observation of colligative properties, according to observation of colligative properties, according to observation of colligative properties, delta TB, मैंने पहले बोला है डेल्टा TB ऐसा नहीं लिखना है, B जो है वो ऐसा लिखना है T के नीचे। डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। व्हाट इज M? M इज इक्वल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड अपॉन द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालने जा रहा हूं तो तीसरा इक्वेशन मिलेगा, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाइड बाई मोलालिटी। ये बहुत बढ़िया इक्वेशन है, यहाँ पे बॉक्स लगा देना, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3। और यहां आपको समझाना है कि मैंने जो ऐड किया KB क्या है। लिख लीजिए KB इज नथिंग बट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। लिखो जल्दी से, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस डिस्कस एज विकेट वी नो दैट मोलालिटी इज इक्वल टू क्या है? W2 वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम
मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, मोलालिटी की डेफिनेशन याद करिए, मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, इसको दे दीजिए नंबर 4। मोलालिटी की वैल्यू नंबर 3 में डाल दीजिए, नंबर 3 में मोलालिटी की वैल्यू, ये मोलालिटी का मैंने फॉर्मूला लिखा, तो हमारे पास इक्वेशन आएगा इससे डेल्टा टी बी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड बाई W2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई M2 मल्टीप्लाइड बाई W1। जहां पे मैं 1 लिख रहा हूं वो सॉल्वेंट है, जहां पे 2 लिख रहा हूं वो सोल्यूट है। याद रखना, 2 रिप्रेजेंट सोल्यूट, 1 रिप्रेजेंट सॉल्वेंट। अब ये बढ़िया इक्वेशन आया, यहां से हमको मिलेगा मोलल एलिवेशन। अभी तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये आपका आया नंबर 5। अब इसको सीधा सिंपल करना है, केबी को लेफ्ट साइड ले रखना है, तो ऐसा हो जाएगा। अब 5 को सिंप्लीफाई करके केबी को लेफ्ट साइड ले लो। 6 नंबर इक्वेशन इज नथिंग बट द सिंप्लीफिकेशन ऑफ 5 नंबर, उसमें कोई वैल्यू नहीं डालनी है, कुछ कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। 5 इक्वेशन तक आपका आ गया कंप्लीट। चलिए, तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं अब के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी मल्टीप्लाइड बाई M2। देखते जाना आगे वाला इक्वेशन में, सिर्फ W2 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो क्वेश्चन अब आप पढ़िए, क्या क्वेश्चन था? डिराइव फॉर्मूला फॉर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो दिस 6 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये आपका रिक्वायर्ड। अब इसकी ईच एंड एवरी टर्म यू हैव टू एक्सप्लेन। क्या केबी क्या है आप लिखिए, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। यूनिट हम बाद में डिराइव करेंगे, बाकी सब का यूनिट लिखेंगे, केबी का यूनिट हमें अभी डिराइव करना है। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका यूनिट या तो डिग्री सेल्सियस होगा या तो केल्विन होगा। मैंने केबी का यूनिट बाकी रखा है क्योंकि मुझे डिराइव करके देना है। W2 क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट वो ग्राम में रहेगा। W1 क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी ग्राम में रहेगा। अब बाकी रहा M2। M2 लिखना मोलार मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम पर मोल, ना। M2 बाकी रहा। M2 इज नथिंग बट मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मोल इनवर्स, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मोल इनवर्स। अब आपका जो 6th इक्वेशन है वो पूरा डिराइव्ड इक्वेशन आ गया है। तो अब मैं यूनिट डिराइव करता हूं केबी का। चलिए, यूनिट। अब केबी का फॉर्मूला आपने पास रखिए। पहली टर्म आती है डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी एलिवेशन, तो उसका यूनिट या तो डिग्री सेल्सियस है या तो केल्विन है। बाद में आता है मोलार मास। आप देख लीजिए, एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट बाद में, तो ग्राम पर मोल मल्टीप्लाइड बाय ग्राम, ग्राम मोल इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ग्राम डिवाइडेड बाय, नीचे आता है, नीचे क्या है? W2 मतलब कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वो भी आएगा ग्राम में, और क्या है? 1000। तो ये ग्राम ग्राम कैंसल आउट, ठीक है। तो यूनिट क्या हुआ? यूनिट ऑफ केबी इज इक्वल टू केल्विन ग्राम डिवाइडेड बाय 1000। उसका मतलब क्या? ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 मीन्स किलोग्राम।
केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये पहला यूनिट। अगर डेल्टा टी बी डिग्री सेल्सियस में है, क्योंकि डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में सेम ही आएगा, आप फिजिक्स में काफ़ी ऐसे डिफरेंस लेते हो तो आपको पता है। और आप यूनिट लिख सकते हो डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल इनवर्स, ये दोनों से। अगर डेल्टा टी बी डिग्री सेल्सियस में है तो डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल इनवर्स, तो यूनिट मैंने डिराइव कर दिया। अब लास्ट पॉइंट, थियरी खत्म होने जा रही है, बाद में हम सिमिलर थियरी, मतलब कि इसकी कॉपी पेस्ट हमें डिराइव करनी है, और वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इससे इससे थोड़ी रिवर्स चलेगी, उसमें सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा सॉल्वेंट से, ठीक है। अब ये फॉर्मूला नए सिलेबस में ऐड हुआ है, उसको लिख लेना। थर्मोडायनेमिकली अगर थर्मोडायनेमिक्स को आप कंसीडर करें तो केबी का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट आता है। केबी इज, यूनिट सेम ही रहता है, कैलकुलेटेड thermodynamically, kb is calculated by following formula। क्या फॉर्मूला रहेगा वो विदाउट डेरिवेशन आपको एक्सेप्ट करना है, न्यूमेरिकल में सीधा ले लेना है। kb इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाई m1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई T0b उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अब इसमें भी आपको ईच एंड एवरी टर्म एक्सप्लेन करनी है। राइट डाउन व्हाट इज केबी, दोबारा नहीं लिखूंगा, यूनिट के साथ लिख लो। आपको पता है T0b क्या है, T0b इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो बाकी क्या रहता है, m1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड दैट वन इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। के बी आप लिख लेना मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यूनिट के साथ। अब क्या बाकी रहता है, m1 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और लास्ट टर्म enthalpy of vaporization, delta H vap, that is nothing but enthalpy of vaporization। ये आप 11th में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हो। यहाँ पे हमारी थियरी खत्म होती है। अब आपको 2-3 फॉर्मूले जो मैंने बताए, 6 तक हम गए डेरिवेशन में। पहले मैंने आपको समझाया व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज द molar elevation constant, and the formula I derived for molar elevation constant by drawing one graph। okay, तो ये थियरी स्टेप बाय स्टेप आप लिख लेना। हम इसकी ट्विंस थियरी जो है वो बोलते हैं डिराइव फॉर्मूला फॉर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, एंड दैट इज द नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मीन्स डिक्रीज, एलिवेशन मीन्स इंक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट में सॉल्यूशन में इंक्रीज होता है, फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्यूशन में डिक्रीज होता है। ठीक है, मैं थोड़ा अभी बेस क्लियर कर देता हूँ ताकि मैं स्टार्ट कर सकूँ। जैसे आप पानी को अगर आइस में कन्वर्ट करो तो 0 डिग्री पे होता है, अगर वही पानी में शुगर डाल दो या तो सोल्ट डाल दो तो 0 डिग्री पे नहीं होता, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, वो माइनस में चला जाता है। ठीक है, आइस कैंडी जो है वो 0 डिग्री पे नहीं आइस में कन्वर्ट होती, पहले तो वो सॉल्यूशन ही होती है ना कैंडी, तो उसमें टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, 0 से नीचे चला जाता है, तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर किसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, एक फॉर्मूला याद आ गया है तो थोड़ा रुक जाइए।
एक ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, और दिस इज इम्पोर्टेंट टू सॉल्व टू फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं अब ऐसा लिख सकता हूँ ना, लास्ट में नोट करके लिख लीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, अगर आपको बॉइलिंग सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्लस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी। ये थोड़ा नोट कर लेना, कोई न्यूमेरिकल में आपको ऐसा बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ये है और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये है, तो प्योर सॉल्वेंट का कितना होगा, तो कुछ नहीं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस डेल्टा टी बी। ठीक है, तो ये थोड़ा एक आपको काम आ सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो यहाँ पे हम थियरी ख़त्म कर रहे हैं, दोनों थियरी ख़त्म करके उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।